You are fine. Today we will discuss the retinal vascular occlusive diseases, which includes retinal artery occlusion, retinal vein occlusion, branch retinal artery occlusion, branch retinal vein occlusion, and retinopathy of prematurity. First, these are various types as you are seeing on the slide. Central retinal occlusion. There is central retinal artery, there is hemiretinal artery, there is branch retinal artery, and there is ciliary retinal artery, which is present in 15% of the cases and supplies the macula, dull supply of the macula. Then there is retinal vein occlusion. Also, they are further subdivided into central retinal vein occlusion, hemiretinal vein occlusion, branch retinal vein occlusion, and the macular branch of the retinal vein to the macula, along with the senior retinal artery. Now the retinal artery occlusion. Okay, there is sudden vision loss in case of central retinal. Complete painful loss of vision occurs in central retinal occlusion, and this is due to the loss of the blood supply to the inner retinal layers, which are responsible for transduction of the visual signals to the visual cortex. The incidence is 1 in 10,000 cases. In every 10,000 cases, there is one case in which we can see the occlusion of the central retinal artery. The epidemiology of further subtypes is the central retinal artery occlusion occurs in 57% of the cases. 57% of the cases होते हैं उनमें central retinal artery occlusion होती है. Branch retinal artery है उससे कम cases में it is in 38% of the cases. And ciliary retinal it occurs only in 5% of the cases. So there are two cases of ciliary retinal artery as compared to the central retinal artery. The majority of the cases of retinal artery occlusion in vascular occlusive disease is central retinal artery, the main retinal artery. Mean age is 60 years, and males are affected more, like somewhat more than females. Now, so it is a disease of the middle age group. When atherosclerotic changes are common, the thickening of retinal wall, loss of the elasticity of the water, loss. Now, what are the causes? The most common is atherosclerosis related thrombus. जब atherosclerosis होती है, वॉल्स की थिकनिंग होती है, उसमें डेपोजिशन होती है, कोलेस्ट्रॉल दूसरे मटीरियल्स की प्लेटलेट एग्रीगेशन सब होते हैं, जो थ्रम्बस बनता है वो डिसलॉज होकर जो ब्लॉक करता है, इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज. देन देयर इज एम्बोलिज्म, systemic cardiovascular disease, then vasculitis, various forms of vasculitis. These include giant cell arteritis, systemic lupus erythematosus, regular granulomatosis, and polyarteritis nervosa. These all forms of vasculitis can cause central retinal artery occlusion or a branch retinal occlusion. Then there are coagulopathies. Again, this is the cause of artery occlusion in a few cases. Then oncogenic and infective diseases of the retina, and oral contraceptive is more common. It is a relatively common cause in Europe. Then pregnancy, drug abuse, and migraine. All these are seems to be the and found to be the risk factors for development of central retinal artery occlusion. So these upper four, atherosclerosis, related thrombus, systemic cardiovascular, vasculitis, and embolism, we should remember
not forget these are the common causes. These are various form of embolus. You have seen this is the embolus. Cholesterol emboli, these are called colon host emboli. Then fibrin platelet emboli and calcific emboli. These three form are emboli. एम्बोलाई की तीन फॉर्म्स होती हैं, इसको होलन हाउस भी कहते हैं, फिब्रिन प्लेटलेट्स भी होते हैं और कैल्सिफिक भी होते हैं। ये तीनों किस्म के जाके ये आर्टरीज को ब्लॉक करते हैं। इसमें आप फिगर में देखो ये आर्टरी आ रही है, इस आर्टरी में ये फर्दर एक ब्रांच के अंदर एक एम्बुलेंस है। इधर भी ये कोई छोटे छोटे आपको नजर आएंगे और यहाँ भी आप देखो बाइफर्केशन ऑफ दी आर्टरी की बाइफर्केशन ब्रांच पे ये एम्बुलेंस ओके। क्लिनिकल फीचर्स क्या है? सडन पेनलेस ऑर्थोपेडिया। जॉइंट सेल आर्थराइटिस होता है, इसमें पेन होती है खास तौर पर टेम्पोरल एरिया में, जहाँ टेम्पोरल आर्टरी जाए तो उसका वो थिकनिंग हो जाती है, सर्चुअस हो जाती है, वहाँ पेन होती है जॉइंट सेल आर्थराइटिस में। बाकी जो कॉजेज हैं इसमें सडन पेनलेस लॉस ऑफ विजन होती है, पेनफुल नहीं होती है। आर्टरी की विजन लॉस है वो बहुत सीवियर होता है, सीवियर लॉस होता है। हैंड मूवमेंट्स पे पीएल पॉजिटिव पे आपकी विजन आ जाती है। आरएपीडी रेडिटिक एफरेंट पिक्यूटरी डिफेक्ट में नर्व फाइबर्स डैमेज होते हैं तो आपका रेडिटिक एफरेंट पिक्यूटरी डिफेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। रूबियोसिस जो है ये 20% केसेस में रूबियोसिस होती है, यानी 1 in 5 केसेस में, हर 5 केसेस में से एक आई में आपको रूबियोसिस मिलेगी। रूबियोसिस क्या है कि न्यू वास्कुलराइजेशन है जो आयरस पे आ जाती है, आयरस पे न्यू वेसल्स ग्रो, न्यू वेसल्स ग्रो करते हैं। अब ये देखो, अगर आप फंडस देखो, फंडस में आपको पेल येलो फंडस मिलेगा स्कीमिया की वजह से, पेल येलो। और उसमें खास तौर मैकुला जो होगा, मैकुला में आपको रेडिटिव कम पेलिंग होगी, इसलिए आपको वो एरिया जरा ब्राइट रेड नजर आएगा सराउंडिंग एरिया, जिसको हम चेरी रेड स्पॉट कहते हैं। सराउंडिंग फंडस पेल है और जो मैकुला एरिया है वहाँ पर रिलेटिवली वो रेड, ऑरेंज रेड नॉर्मल कलर है, इसको हम चेरी रेड स्पॉट कहते हैं। इसके अलावा इसमें कैटल ट्रकिंग होती है, जो छुपाए चलते हैं उनके पाँव पे जैसे निशान पड़ते हैं, ब्लीडिंग हुई होती है, आप ज़मीन पे चलते हैं उस तरह के आपको निशान ट्रकिंग के मिलते हैं रेटिना में, इसको हम कैटल ट्रकिंग कहते हैं। इसके अलावा आपको न्यू वेसल जो है डिस्क में मिलेंगी और पेरिफेरी में, इसको तो डिस्क में मिलती हैं उसको न्यू वास्कुलराइजेशन है डिस्क कहते हैं एनवीडी, जो पेरिफेरी में मिलती हैं उसको एनवीई कहते हैं, न्यू वास्कुलराइजेशन एल्सवेयर। ओके, ये टिपिकल एक पिक्चर है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन की, पेल डिस्क स्पेयरिंग ऑफ द मैकुला। लेट स्टेज में क्या होगा? ऑप्टिक एट्रोफी होगी, ऑप्टिक नर्व फाइबर्स डीजनरेट कर देंगे और डिस्क पेल हो जाएगी, वेसल्स की थिनिंग होगी, नैरोइंग होगी, शीथिंग होगी और आखिर में पिगमेंटरी चेंजेस रेटिना में आ जाएंगी, रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियल चेंजेस आएंगे, पिगमेंटेशन डेवलप होगी। ये फाइंडिंग्स सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन में। ये देखो, ये पेल फंडस है, इसमें पेटेंट सीवियर रेटिनल आर्टरी की मैकुला को सप्लाई करके ये एरिया बच गया, बाकी सराउंडिंग पेल फंडस सेंट्रल रेटिनल ओक्लूजन की ऐसे। और ये ओल्ड सी आ रही है, डिस्क पेल हो चुकी है, वेसल्स की थिनिंग हो चुकी है। नाउ इसमें डीडी में क्या आता है और कौन सी डिजीजेज है जिसमें आपको चेरी रेड स्पॉट मिल सकता है? इसमें एशेक्स डिजीज है, नीमेन पिक्स डिजीज है, मायोक्लोनस है, बर्लिन एडिमा है,
ट्रॉमा के ब्लंट ट्रॉमा होता है, उसे रेटिनोसिमिया एडिमा होने जैसे होता है, उसको बर्निंग एडिमा कहते हैं। इसके अलावा फिर एडिमा के आखिर में आपके लेयर्स में होल भी, मैकुलर होल भी पैदा हो सकते हैं, लेयर्स डैमेज हो जाती हैं तो एरिया आपका मैकुला में होल पैदा हो जाते हैं और हेमरेजेस भी हो सकती हैं। तो ये सब जो पिक्चर्स हैं डिस्ट्रिक्ट डिजीज की नेम एंड पिक्स, मायोक्लोनस, बर्लिन एडिमा, मैकुलर होल, ये सब आपको चेरी रेड स्पॉट नजर आता है इंसान। एफएफएफ पे आपको क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी? डिलेड एट्रियल फिलिंग, एट्रियल फिलिंग जो होगी नॉर्मल उसका टाइम जो होता है फ्यू सेकंड्स का, उसे डिले होगा। देखिए इसमें ये सिलियर रेटिनल फिलिंग हुई है और अदर वेसल्स की यहाँ पर नॉन फिलिंग जा रही है और लेट चेंजेस में आपकी वेसल्स की स्ट्रेनिंग हो गई। ये देखो ये मैकुला का है, ये एडिमा है, ये एलिवेशन है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा। ये बीआरवीओ की पिक्चर है, जो एक एरिया हुआ है उसका एरिया पेल हुआ है, एक सेक्टर पेल हुआ है, पूरी रेटिना पेल नहीं हुई। इसमें भी एट्रियल फेज डिलेड है, लेट एट्रियल वॉल स्टेनिंग। ये मैकुला के एरिया में स्मॉल एक ब्रांच रेटिना है, ये छोटा सा एरिया है क्या, ये आपका इसमें इफेक्ट हो गया। ये आइसोलेटेड सिलियो रेटिनल आर्टरी जो मैकुला को सप्लाई करती है उसकी ब्लॉकेज है, ये वो पर्टिकुलर एरिया उसका ब्लॉक हुआ। और ये जो चीज़ें हैं सिलियो रेटिनल आर्टरी, ये एआईओ एंटी इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी जब होती है उसके साथ कंबाइंड भी हो सकती है। सिलियो रेटिनल वेन है तो उसके साथ मैकुलर ब्रांच भी इन्वॉल्व हो सकती है, आइसोलेटेड भी होती है, कंबाइंड भी हो सकती है ब्लॉक। इसमें गार्डेड प्रोग्नोसिस होता है। ये सीलियो रेटिनल आर्टरी है, ये इंटररेटिनल वेन के साथ, ये आपको हेमरेजेस वेन के बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स में नजर आ रहे हैं, कंबाइंड है। और ये सिटी इस्केमिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी के साथ कंबाइंड है, सॉरी ये कि जॉइंट सेल आर्थराइटिस के साथ कंबाइंड है। इन्वेस्टिगेशन जैसे आपने केसेस में क्या करनी है, पेशेंट की पल्स चेक करनी है, ब्लड प्रेशर लेना है, कार्डिक डिजीज, कार्डिक अस्कल्टेशन करनी है, कार्डिक डिजीज तो नहीं है, अरेथमियास तो नहीं है, हार्ट ब्लॉक तो नहीं है, कार्डिक प्रॉब्लम तो नहीं है, ईसीजी करानी चाहिए, एक्कोकार्डियोग्राफी, इंफ्लेमेटरी मार्कर्स के लिए ईएसआर, सीआरपी, ब्लड पिक्चर करानी चाहिए, एक्सरे साइड सेडिमेंटेशन रेट देखना चाहिए और फिर सीआरपी प्रोटीन का भी कराना चाहिए, सी रेटेड प्रोटीन जो आती हैं वो आपकी करानी चाहिए। जैसे कैरोटिक स्कैन करें तो कि वहाँ कोई अच्छी कुछ क्लोटिक प्लैक तो नहीं है, थिकनिंग तो नहीं है, वहाँ नरिंग तो नहीं है आर्टरी की, चेस्ट एक्सरे करानी, उसके बाद ब्लड टेस्ट फॉर कोएगुलोपैथी, ऑटो एंटीबॉडी, अच्छा राइट है। ये सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन जो हैं ये आपको इसमें करानी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, अर्ली पेशेंट को शुरू के आवर में, फर्स्ट फ्यू आवर्स में आपको जो होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, पेशेंट के लिए 24 to 48 आवर्स आप स्पाइन पोजीशन में उसको कर दें, ऑकुलर मसाज करें, उनकी चैम्बर की पैरासिस करें, प्रेशर नीचे आ रहे, सब लिंगुअल आइसोसॉर्बाइड डाइनाइट्रेट दे सकते हैं वेरोडाइलेशन के लिए, आईओपी लोअरिंग एजेंट में हाई ऑक्सीजन कंसंट्रेशन,
ब्रीथिंग हाई ऑक्सीजन 95% ऑक्सीजन 5% कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। इसके अलावा ट्रांसल्यूमिनल आप उसकी एंडीजैक एम्बोलाइसिस भी कर सकते हैं। ये वेरियस ऑप्शन हैं जो हम ऐसे केसेस में, और प्रोग्नोसिस पर भी गार्डेड होती है ऐसे केसेस में, डिपेंडिंग कि कितना अर्सा गुजर गया, कितना डैमेज हो गया, कितना सीवियर अटैक था, कितना बड़ा एम्बुलेंस था, कितना पोर्शन ब्लॉक हुआ, उनके हिसाब से फिर आपको कितनी रिकवरी होती है और कितनी गार्डेड प्रोग्नोसिस होती है। नाउ रेटिनल वेन ओक्लूजन, बट वेन ओक्लूजन जो है ये आर्टरी की मेनली, जब आर्टरी की स्क्लेरोटिक डिजीज होती है तो उसके से मेनली सेंट्रल रेटिनल वेन भी और ब्रांच वेन ओक्लूजन दोनों होती हैं। ये दोनों असल में आर्टरी वेन जो है ना, इनमें एक कॉमन एडवेंटिशियस शीट होती है। खासतौर पर सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है ये लैमिना तुबरोसा के पीछे आर्टरी का एक ही शीट होती है। जब आर्टरी के शीट एसोसिएट होती है की वॉल की थिकनी हो जाती है और वेन को उस एरिया पर कंप्रेस कर देती है, इसकी वजह से वेन की ल्यूमेन ब्लॉक हो जाता है, वहाँ स्टेसिस हो जाती है। स्टेसिस की वजह से इसकी हाइपोक्सिया होता है, प्रेशर इंक्रीज एक्स्ट्रा वास्कुलर प्रेशर होता है, उसके साथ एडिमा और हेमरेज और लीकेज और हेमरेजेस होती हैं। एंडोथेलियल सेल लॉस होगा, वेन्स की टॉर्चुसिटी डेवलप होगी, ये सारी फीचर्स फिर डेवलप होती हैं। रिस्क फैक्टर्स क्या है? एज 50% ग्रेटर देन 65 ईयर्स में होते हैं, कोई आर्टरी की थीरोस्क्लेरोसिस है, थीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो हैं, खास तौर पर जो हाइपरटेंशन है, हाइपरलिपिडेमिक, डायबिटिक हो, इन्फ्लेमेटरी डिजीज, वास्कुलाइटिस या वास्कुलाइटिस लेबाइटिस हो, ग्लाकोमा हो, ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। मेन जो है वो आर्टरी की थीरोस्क्लेरोसिस, थीरोस्क्लेरोटिक चेंजेस एक वॉल को थिक कर देती हैं और वो वेन को कंप्रेस करती है कॉमन एडवेंटिशियल शीट पे, जहाँ पर इसके फिर वेन का ल्यूमेन बंद हो जाता है, वहाँ स्टेसिस होती है और वेन टॉर्चुसिटी होती है और हाइपोक्सिया होता है, वहाँ से सर्फेस सेल लॉस होता है। हाइपोक्सिया की वजह से इस्कीमिया जो है और फिर लीकेज ऑफ ब्लड सारा बाहर आ जाता है। हमने फर्स्टली सेंट्रल रेटिनल वेन की कैपनेस 0.1 to 0.4% है। एज जो है एज जो है ग्रेटर देन 60 ईयर्स है, मेल फीमेल रेशियो तकरीबन इक्वल है। रिस्क फैक्टर इन द फेलो आई 1% एट 1 ईयर, 7% इन 7 ईयर्स। दूसरी आई में भी एक साल में 1% चांस होता है कि दूसरी आई भी इफेक्ट हो जाएगी और 7% चांस 7 साल तक होता है, इसलिए आपको दूसरी आई को भी क्लोजली फॉलो अप करना पड़ता है ऐसे केसेस में। अब इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं, इस्केमिक और नॉन इस्केमिक टाइप। नॉन इस्केमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन है वो मोर कॉमन है। नॉन इस्केमिक जो है ये मोर कॉमन है, 75% केसेज में नॉन इस्केमिक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होती है। सडन पेनलेस ओक्लूजन रीजन होती है, विजन लॉस इसमें मॉडरेट सीवियर होता है, आर्टरी में बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो इसमें फाइंडिंग क्या मिलेंगी? टॉर्चेस, डायलेटेड वेन्स होंगी, डॉट ब्लॉट हेमरेजेस होंगे, फ्लेम शेप हेमरेजेस होंगे, सारे क्वाड्रेंट्स में होंगे। सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होगी, इसकी सारी ब्रांचेज चारों क्वाड्रेंट्स में जा रहे हैं, सारी इन्वॉल्व होंगी। ये फ्लैश ऑफ हेमरेजेस इन ऑल द क्वाड्रेंट्स आपको मिलेगा, तो ब्रांच में तो आपको पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में मिलता है। इसको टोमेटो स्प्लैश पेन, थंडरस्टॉर्म पेन इसलिए कहते हैं। हाइपोक्सिस से एडिमा होगा तो मतलब एडिमा भी आपको नजर आएगा। तो इसमें अगर 15% है 4 मंथ और 34 है 3 ईयर्स, तो कहते हैं इतने परसेंट केसेज जो है नॉन इस्केमिक इस्केमिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ केसेज जो नॉन इस्केमिक होते हैं वो इस्केमिक में कन्वर्ट हो जाते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
इसमें भी देखो आप ये इसमें देखो ग्रेप आधे टाइम है, रेटिंग प्रोफ्यूजन है, और भी काम कर रहे हैं, मैकुलर एडिमा है, ओसीटी पे देखेंगे आपको मैकुलर एलिवेट नजर आएगा। और आप जो देखो फेल डिस्क है, सारे क्वाड्रेंट्स में हेमरेजेस हैं, टोमेटो स्प्रे फंडस का होना चाहिए, पूरा रेड फंडस हो गया। अब स्किमिक फॉर्म में क्या होता है, सडन पेनलेस लॉस होता है, सुई लॉस होता है, यूजुअली क्योंकि काउंटिंग फिंगर्स कभी वर्क हो सकती है, काउंटिंग फिंगर में से वर्स होगी। आरएपीडी प्रेजेंट होगा 2 से 3 से 4 महीने के अंदर जो होते हैं, क्रॉनिक हाइपॉक्सिया जैसे न्यूवास्कुलराइजेशन शुरू हो जाती है ऐसे फंगस में अगर आप ट्रीटमेंट ना करें। और कहते हैं आयरस में रेडियसेज होती है, आप ये देखो ये आयरस में ये आपको रेड रेड नज़र आ रही होंगी, ये सारी नॉर्मली आयरस ब्लड वैसे नज़र नहीं आ रही होती, आप ये देखो ये सारी ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, खासतौर पर पिटुटरी मार्जिन के ज़्यादा होती हैं और रेडियल उनका ये बाकी फॉर्मेट। दिस इज रूबियोसिस आयरडाइटिस। पहले आयरस पे बनती हैं, इसके बाद फिर ये रेडियली ग्रो करती हैं, आयरस की रूट पे जाती हैं, वहाँ से जाके एंगल को भी कर देती हैं, इसको एंगल न्यूवास्कुलराइजेशन कहते हैं। तो हमें क्या फाइंडिंग्स मिलेंगी सेंट्रल आपकी वेन ओक्लूजन में? टॉर्चर्स, डायलेटेड इरेगुलर मेंस मिलेंगी, एक्सटेंसिव हेमरेजेस, बड़े बड़े हेमरेजेस होंगे, सारे क्वाड्रेंट्स में होंगे, डिस्क की स्वेलिंग होगी, और कॉटन वूड स्पॉट्स मिलेंगे। कीमिया हुआ फिर आपको यूटी कीमिया के वजह से एग्जाम्स में जो टर्मिनल एग्जाम होता है उसमें बल्जिंग हो जाएगी, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट उसकी एग्जामल ट्रांसपोर्ट में ब्लॉक हो जाएगी, उसको तो वहाँ की टर्मिनल एग्जाम होते हैं, उनकी स्वेलिंग हो जाती है, कॉटन वूड स्पॉट्स के वहाँ पे बड़े बड़े फ्लफी वाइट पैचेस नजर आते हैं, कॉटन वूड स्पॉट्स है। फ्लोरेसेंस फंगस एंजियोग्राफी इसका इफेक्ट हो जाता है, आपको डिलेड एडी ट्रांजिट टाइम मिलेगा, एक्सटेंसिव प्रोफिली नॉन डिफिजन मिलेगी, एरिया ऑफ टोटली ड्रॉप आउट इसको हम देखते हैं। वहाँ आपको ब्लैक एरिया जहाँ पर कोई पिपिली नजर नहीं आएगी, वहाँ फिलिंग नहीं हो रही है, उनको ड्रॉप आउट एरिया से। और ओसीटी पे आपको एडिमा नजर आएगा, मैकुलर ये देखो सारे लैंग्वेजेस होंगे, ये मैकुलर एडिमा है, सिस्टिक स्पेसेस अंदर भी नीचे भी सब मैकुलर भी एडिमा है। और ये देखो ये बेस पॉकेट्स हैं, यहाँ नॉन परफ्यूजन है। इन्वेस्टिगेशन आप क्या करेंगे, आज पेशेंट में ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, या सांस, ब्लड काउंट, इसके अलावा सारी लिपिड प्रोफाइल करानी चाहिए, हाइट, कोलेस्ट्रॉल, लिपोप्रोटीन, हृदय में यूरिया क्रिएटिनिन, इलेक्ट्रोलाइट्स, थायराइड फंक्शन टेस्ट, ईसीजी। ईसीजी में आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी मिलेगी हाइपरटेंशन की वजह से। सिलेक्टेड पेशेंट में ये आपको ये टेस्ट हमें हर पेशेंट में कराने हैं। इसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन दी सिम्टम भी है, बाकी और टेस्ट हैं जो आप सिलेक्टेड देखते हैं किस पेशेंट में कराने हैं किस में नहीं। चेस्ट एक्सरे, टीबी, साइकोडेक्सिस के लिए चेस्ट एक्सरे, सी रिएक्टिव इंडिकेटेड इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो सी रिएक्टिव प्रोटीन करा लें, या जॉइंट सलाइटिस है, सी रिएक्टिव प्रोटीन उसमें हाई होगी। इसके अलावा होमोसिस्टिन लेवल्स, थ्रोम्बोफिलिया स्क्रीनिंग, प्लाज्मा प्रोटीन, इलेक्ट्रोफोरेसिस, ऑटो एंटीबॉडी, आरएफएएनए, ईसीएनए, एंटी डीएनए एंटीबॉडी, कार्बोडाइसिस में एज लेवल्स कराते हैं, ट्रेपोनिमल सीरोलॉजी करा लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इमेजिंग करा लेंगे। ये आपने डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ स्पेसिफिक एरिया में आप कोई डिजीज समझ रहे हैं, स्पेसिफिक डिजीज नहीं है, स्पेसिफिक एरिया में ब्लॉकेज समझ रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन भी आप सिलेक्टेड पेशेंट में सिलेक्टेड टेस्ट करा सकते हैं।
अब मैनेजमेंट इसमें दो चीज़ें होती हैं, इसमें मैंने पढ़ा एक न्यूवास्कुलराइजेशन हो रही है और एक मतलब एडीमा डेवलप हो रहा है, तो इन दोनों आपने कॉम्प्लिकेशंस को ये दोनों जो रेटिना में चेंजेस अगर हो रही हैं दोनों को एड्रेस करना है। तो सिस्टर्ड मैकुलर एडीमा हम देखेंगे विजुअल एक्टिविटी लेस देन बाय 6, अगर विजुअल एक्टिविटी लेस देन 6/9 है, मैकुलर थिकनिंग है, तो आपने इंट्राविट्रियल एंटी-वेजेफ देने हैं। इसके अलावा डेक्सामेथासोन भी दे सकते हैं इम्प्लांट के तौर पे भी, इंट्राविट्रियल भी, और ग्रिड लेजर भी आप लगा सकते हैं। मैकुलर एडीमा को आप एड्रेस करने के लिए मिक्स ऑप्शन आपके पास है। फर्स्ट आप कोशिश करते हैं एंटीवायरस से कंट्रोल हो जाए, न्यू वेसल रिग्रेस कर जाए, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, स्टॉप हो जाए, नहीं है फिर आप मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा, फिर आपको ग्रिड लेजर लगा के न्यू वेसल्स को बर्न आउट करना चाहिए। तो आपको जो लीकेज हो रही है, लीकेज स्पॉट को हमें ग्रिड लेजर लगानी पड़ती है ताकि वो बीमारी रिजॉल्व हो। और न्यू वास्कुलेशन है, इसमें PRP है, NBE है, न्यू वास्कुलेशन हो रही है, आयरिस पे हो रही है, और एनी न्यू वास्कुलेशन कहीं और हो रही है, इसलिए PRP करेंगे कंबाइन विद इंट्राविट्रियल एंटीबायोटिक। ब्रांच एक्टिवेट तो मैकुलर ब्रांच पेन भी हो सकती है, पेरिफेरल ब्रांच भी हो सकती है, इसमें भी सडन पेनलेस ब्लड लीजिंग होगी, NBI NBG आपको मिलेंगी, मगर सेंट्रल रेटिना से काम कैसे डॉट लॉट हेमरेजेस, मगर ये हेमरेजेस जो होंगी डॉट लॉट या प्लेन के क्वाड्रेंट में होंगी, जिस ब्रांच की जहाँ की ब्रांच वेन एक्लूजन होगी। ये देखो ये आपका क्वाड्रेंट है, इस ब्रांच में आपकी ब्रांच, तो बाकी एरिया ये नॉर्मल परफ्यूज हो गया, इसमें ये आपके सारे ब्लैक स्पॉट या नॉन परफ्यूज एरिया, इसमें देखो डिफ्यूज परफ्यूजन है, इसमें ये ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं नॉन परफ्यूज। ये हमने पढ़ लिया मैंने, जैसे हमने रेटिनल वेन एक्लूजन की पढ़ी थी, इसी तरह अगर ब्रांच है तब भी आपने मैकुलर एडीमा के लिए वही ट्रीटमेंट देना है। रीजन कितनी कम है 6/9 से थिकनिंग है, तो आपने इंट्राविट्रियल वेजेस देने हैं, डेक्सामेथासोन देनी है, ट्राइमसिलिन देनी है, ग्रिड लेजर लगाना, और नियोवास्कुलराइजेशन में इसमें हमने कंप्लीट PRP की, जिसमें हमने सेक्टर में ही PRP करनी है और साथ वेजेस देना है। ये देखो ये आपकी यहाँ एडवांस की शीट है, यहाँ ये वेन ब्लॉक हुई, ये देखो ये देखो एरिया है, यहाँ है, ये इस क्वाड्रेंट में हाफ, निचले हाफ में हेमी रेटिनल वेन एक्लूजन है, एक हाफ इन्वॉल्व है, ऊपर का हाफ रेड स्क्वायर हो गया, इसमें देखो इसी हाफ में नॉन परफ्यूज्ड एरिया है, ये हाफ ठीक है। तो ये पिक्चर है, इसमें पंडा सारा फेल भी है, टेरी रेड स्पॉट भी है, साथ हेमरेजेस भी है, इसमें कंबाइंड आर्टरी और वेन एक्लूजन है, वेन की वजह से भी सारे हेमरेज हैं, आर्टरी की वजह से टेरी रेड स्पॉट और फेल पंडस भी है। ऐसे केसेस में मेजॉरिटी केसेस में रिड्यूसिव न्यूवास्कुलर ग्लूकोमा डेवलप हो जाता है, रिड्यूसिव क्योंकि सीवियर इस्कीमिया होता है, दोनों आर्टरी वेन ब्लॉक हो गया, प्रॉब्लम इन केसेस में अच्छी नहीं होती। अब नेक्स्ट ईल्स डिजीज होती है, इट इज इडियोपैथिक पेरिफ्लेबाइटिस, वास्कुलाइटिस होता है, पेरिफ्लेबाइटिस होता है, मेंस और आर्टरी इन्फ्लेमेशन होती है यंग केसेस में, इसलिए कोई कॉज नहीं हो रहा होता, इडियोपैथिक रेटिनल प्लेफाइब्राइटिस।
इडियोपैथिक इन्फ्लेमेटरी वीनस ओक्लूजन एसोसिएटेड वो ट्यूबरकुलोसिस से होती है, ट्यूबरकुलोसिस हाइपरसेंसिटिविटी होती है, जैसे यंग मेल्स में होती है 20 से 30 साल के। और डिजीज जो है एक सेंचुरी में होती है, एक में कम होगा, एक में बहुत ज़्यादा भी। इनिशियली जब तक हैबिट इंफॉर्मेशन डेवलप नहीं हुई थी तो पेशेंट एक सिम्टोमेटिक होता है। जब डेवलप होती है वास्तु शीथिंग डेवलप होती है, हम मुझे देखते हैं पेरिफेरल डेवलप होता है, सडन डिफ्यूजन फीवर होती है, क्योंकि उस वाले को हैमरेजेस होते हैं वो विट्रियस में भी आ जाते हैं। जब ब्लड होगा फिर वो विट्रियस में आ जाएगा, विट्रियस हैमरेज डेवलप होता है। थिक कार्टियस पेरिफेरल वेन्स होंगी, पेरिवास्कुलर शीथिंग होगी, रेटिनल हैमरेजेस होंगी, न्यूरोवास्कुलाइजेशन होगी, विट्रियस हैमरेज। मुख्तलिफ स्टेजेस में ये डिजीज़ मौजूद होती है। कौन सी आँख कितनी चेक हुई है, कितना अर्सा हो गया, किस स्टेज में है, अर्ली स्टेज में है, अभी टॉर्चर सेंस का एक एरिया में आपको एक टॉर्चर सेंस मिल रही होंगी, कुछ में आपको हेमरेजेस डेवलप हो रही हैं, कुछ एरिया में आपको इन्फ्लेमेटरी वेसल्स के साथ साथ येलो शीथिंग नज़र आ रही है, और कहीं आपको न्यू वेसल्स डेवलप हो रही हैं। ये देखो ये सारे हेमरेजेस हैं, ये शीथिंग है, ये वेसल्स की यहाँ पर इन्फ्लेमेटरी शीथिंग है। ये देखो यहाँ भी आप देखें, ये एरिया ये इन्फ्लेमेशन है। कॉम्प्लिकेशन ये हो सकती हैं, रिकरेंट विट्रियस हैमरेज हो सकती है, रेटिनल वास्कुलराइजेशन तो बार बार होगी, तो उसका जो फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ होगी और फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू डेवलप होगा, उसका जो उसकी प्रोलिफरेशन होगी, ट्रैक्शन होगी, और ट्रैक्शन आरडी डेवलप होगी, और उसके बाद वैसे न्यू वेसल ग्रो करेंगे, वो रेटिना की तरफ भी जब आयरस पे ग्रो कर देंगे, वहाँ से फिर वो रेडियली आयरस के टिप्स में जाकर आगे एंगल में पहुँच जाएंगी, और वहाँ पर वो रिड्यूसेस आइडियस कर देगी और न्यूवास्कुलर ग्लोकोमा कर देंगे, जब एंगल को ब्लॉक कर देंगे फाइब्रोवास्कुलर ग्रोथ के। एक अंडरलाइन कॉज अगर जैसे टीबी है, कोई ऐसी सिस्टमिक डिजीज है, उसको एंटी टीबी से ट्रीट कर सकते हैं टीबी को। कोई और इन्फॉर्मेशन स्टीरॉयड्स आ सकते हैं, लोकल जो हेमरेज लीकेज हो रहे हैं, लोकल हार्ट को एजुकेशन कर सकते हैं, विट्रियस हेमरेज के लिए पार्ट प्लाना विट्रेक्टमी कर सकते हैं, और आरडी सर्जरी करवा लें। तो डिपेंडिंग ऑफ किस स्टेज में है, क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। और नेक्स्ट है आपकी रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी। रेटिनोप्री इसमें एबनॉर्मल रेटिनोवास्कुलर प्रोलिफरेशन होती है चिल्ड्रन में, तो लो बर्थ वेट प्री मेच्योर पैदा होते हैं, बर्थ वेट 1500 ग्राम से कम होता है। ऐसे कैसे मुझे पोस्ट नेटल हाई ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है, हाइपोक्सिया होता है, आप हाई ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उससे आपकी एबनॉर्मल वेसल्स ग्रो कर देते हैं। ये नॉर्मल रेटिनोवास्कुलर स्टार्ट्स एट 16 वीक्स ऑफ गेस्टेशन फ्रॉम द ऑप्टिक डिस्क से हाइलाइट वेसल्स ग्रो करती हैं। नेजल रेटिना 36 वीक्स में डेवलप हो जाती है, जबकि टेम्पोरल है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेती है, बर्थ के बाद भी 1 महीना तकरीबन लग जाता है फुली वेसल्स को रेटिनल पेरिफेरी में पहुंचने तक। पैथोजेनेसिस क्या होता है इसमें, केस 1 में हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट होता है, जिसके ऊपर आपको हाइपोक्सिया होता है, उसके बाद आप सप्लीमेंट्री ऑक्सीजन देते हैं, लीड की सेडेशन, और जिसकी वजह से क्या होता है, वेजेस ड्रिवन वेसल ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, और जो वेसल जो ग्रो हो रही थी उनकी ऑब्लिट्रेशन हो जाती है, जिसके फिर रेटिना इस्कीमिया डेवलप हो जाता है। फेज 2 में इस्कीमिक रेटिना जो होती है, इसमें ओवर प्रोडक्शन ऑफ वेजेस होती है, और उसके वजह से फिर आपकी न्यू वेसल्स डेवलप होती है। न्यू वेसल जो डेवलप होती हैं ये रेटिना पे भी ग्रो करते हैं, विट्रियस में भी करती हैं, वहाँ पर आपकी फाइब्रस टिश्यू बनाती हैं और ट्रैक्शन और आरडी कर देती हैं। तो आरोपिक इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन है, इसके उन्होंने स्टेजेस ऑफ सीवियरिटी और एक्सटेंट, कौन से जोन में इन्वॉल्वमेंट है, और पेरिफेरी एबनॉर्मल वास्कुलेचर के हिसाब से इसको वेरियस स्टेजेस में डेवलप किया गया।
इसमें जोन 1 है, इट इज बाउंडेड बाय इमेजिनरी सर्कल जो आपको होगा, जिसका रेडियस कितना होगा, ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्क टू द सेंटर ऑफ द मैकुला। ऑप्टिक डिस्क के सेंटर से मैकुला तक उसका आप एक डिस्क लो, जिसमें आप डिस्क का सेंटर लो और मैकुला के सेंटर तक एक दायरा बनाओ। ये जोन 1 है आपकी। जोन 2 क्या करती है, डिस्क 1 के एज से एक्सटेंड करती है और ये लेकर ओरल नेजल स्लेटा तक सारी जाती है। यानी डिस्क 1 के साथ आप एज से लो और बाकी एक सर्कल बनाओ जो नेजल और स्लेटा तक जाए। तो टेम्पोरल ज़्यादा बड़ा है, इससे टेम्पोरल एक क्रीसेंट बचेगा, बाकी ये सारा जोन 2 आएगा और ये टेम्पोरल क्रीसेंट जो बचेगा ये जोन 3 कहलाएगा। दिस इज सेंट्रल, आफ्टर दिस सेंट्रल के सेंटर ऑफ मैकुला तक ये जोन 1 है। तो ये जोन 2 है जो नेजल सेरेटा तक आ रहा है, और ये बाकी टेम्पोरल जो बच गया ये जोन 3 है। ठीक है, ये स्टेज 1 में यहाँ फाइब्रस प्लास्टिक टिश्यू ग्रो की एक डिमार्केशन लाइन बनी है, तो इसमें इसके असर और वो रेज में कन्वर्ट होगी स्टेज 2 में। फाइब्रस टिश्यू इसमें ग्रो किया, उससे एक रेज बन गया। स्टेज 3 में ये आपका जो फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू है ये रेटिना से आगे ग्रो कर गया, एक्स्ट्रा फाइब्रोवास्कुलर प्रोजेक्शन। स्टेज 4 में रेटिना डिटैचमेंट हो जाती है और इसमें आपका मैकुला इन्वॉल्व नहीं हुआ होता, वो भी आई है। और स्टेज 4A में आपकी पार्शियल आरडी या फोबिया इन्वॉल्व नहीं है। स्टेज 4B में पार्शियल आरडी और फोबिया इन्वॉल्व है। स्टेज 5 में टोटल आरडी है। प्लस डिजीज में जब प्लस डिजीज होती है इसमें डायलिसिटेड टॉर्चर एसिड है, 2 क्वाड्रेंट्स में वीनस लिक्विड हेड होगी और नॉन डायलेटिक पीपल होगी। जो उसमें डायलेट होगी फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू में कंट्रैक्ट किया होगा, पीपल कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती। तो ये फाइंडिंग्स प्लस डिजीज की होगी। तो इसलिए आपको जरूरी है कैसे केसेज जो हैं बच्चे हैं, जैसे वीनस केस हैं, लो बर्थ वेट हैं, अर्ली गेस्टेशन में हो गई है, आपको पोस्ट में फोकस फोर्थ वीक में उनको फर्स्ट एग्जामिनेशन करनी है। उनको जब तक रेटिना सारी वास्कुलराइज नहीं होती उनका क्लोजली आपको फॉलो अप करना चाहिए। ट्रीटमेंट वही है जो आप रेस्टल ग्रो कर रहे हैं, इंट्राविट्रिन एंटी वेजेफ देंगे जोन 1 एंड 2 के लिए, और पार करेंगे फॉर स्टेज 4 के लिए। थैंक यू। अब बोलेंगे आवाज आएगी।